میں نے سورۃ التوبہ سے غالباً آیت نمبر 10 ہے، اس کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی موقوفاً حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے۔ وقت مختصر ہے، اس کے بارے میں کچھ سناؤں۔ اس سے پہلے آئیے آپ اور ہم سب کے سب مل کر حضور اکرم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عربین لہجے میں درود پڑھیں گے آپ کو ہمارے ساتھ پڑھیں کو আমাদের বেঙ্গলি আন্দাজে তো আমরা পড়ছি মিলাদে জলসাই মসজিদে সব জায়গায় পড়ি عربین لہجہ میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو صرف پہلا والا مصرع پڑھنا ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آپ کو صرف اتنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ کو نہ بھی آئے تو سنیے گا۔ ہمارے یہاں پہ رونق اسٹیج علماء کرام ہیں، یہ ساتھ دیں گے تو کافی ہے۔ بلواتے یہی ہیں، سنتے بھی یہی ہیں۔ اگر سننے میں آ جائیں تو تقریر جم جائیں گے، اور اگر یہ سننے کا ارادہ چھوڑ دیں تو تقریر نہیں جمے گی، چاہے وقت کا علامہ ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور جو درود پڑھنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف۔ کیا نام ہے؟ کی نام ہے؟ قصیدہ بردہ۔ بردہ کا معنی ہے بچہ آدھا، قصیدہ کا معنی ہے تعریف۔ علامہ شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ لکھا ہوا درود ہے۔ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، کس کی؟ علامہ شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور آپ سو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے استغاثہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ شفا عطا فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے شفا کی التجا کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا قبول کی۔ آپ سوئے تھے، چادر شریف آپ کو اڑا دیا گیا اور آپ صحت یاب ہو گئے۔ تو یہ قصیدہ بردہ شریف ساتھ دیجیے گا علماء کرام۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق মাইকটা তোমায় ভালো ছিল, খারাপ করলেন নাকি? যেরকম ছিল সেরকম করবেন না, খারাপ করে। মুহাম্মাদুন সাইয়্যিদুল কাওনাইন ওয়া সাকলাইন, মুহাম্মাদুন সাইয়্যিদুল কাওনাইন ওয়া والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اپنا پڑھوں وہی یا نبی پڑھ کے عادت ہے ہم کو، یا نبی سلام علیکہ، یہ پڑھ کے چونکہ ہم کو عادت ہو گئی ہے، وہ بھی سلام ہے، مگر یہ مستند درود و سلام ہے، سند یافتہ ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں قبول شدہ یہ درود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر اس درود و سلام کو اتنی شہرت حاصل ہوئی جس کا کوئی جواب نہیں۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
بكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ آپ نے ساتھ دیا. انشاءاللہ وقت سے پہلے ہی اٹھ جاؤں گا. عزیزان محترم، میں نے قرآن مقدس سے آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے. رب فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدیں وہی قائم کرتے ہیں، مسجدیں وہی بناتے ہیں. مسجدیں وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اس پر بولیے. مسجد کوئی بھی نہیں بنا سکتا، مسجد بنانے والوں کی کچھ خوبی ہوتی ہے. رب تبارک و تعالی نے ان کی خوبیاں بیان کی کہ جو لوگ مسجد بناتے، جارا مسجد بنا تادر گن کی، تادر صفت کی، تادر خوبی کی، تو رب تبارک و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 18 مدد بولیں اللہ پاک انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. بے شک নিঃসন্দেহ মসজিদ তারাই বানান যাদের আল্লাহ পাকের উপর ভরসা আছে, ওয়াল ইয়াউমিল আখির এবং কিয়ামতের উপর বিশ্বাস আছে, ওয়া আকামাস সালাহ এবং কন্টিনিউ তারা নামাজ পড়েন, ওয়া আতাজ যাকাত এবং যাকাত দান দেন, ওয়ালাম ইয়াখশা ইল্লাল্লাহ আর ভয় শুধু আল্লাহকে রেখেই করে, ফাআসা উলাইকা আন ইয়াকুনু মিনাল মুহতাদিন. আল্লাহ পাক বলছেন যাদের মধ্যে যারা মসজিদ বানান ওনাদের মধ্যে যদি এই গুণগুলো চলে আসে তো আল্লাহ পাক বলছেন রেজাল্ট হিসাবে বলছেন কি ফাআসা উলাইকা আন ইয়াকুনু মিনাল মুহতাদিন, তারাই সঠিক পথে আছে. বলুন আলহামদুলিল্লাহ. বেশক বেশক. ولم يخشى الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. تو قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ থেকে একটি হাদিস মুসনাদ ইমাম আহমদ ابن حنبل থেকে رضی اللہ تعالی عنہ. آخر کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. আপনারা এমন ব্যক্তিকে যদি দেখেন যে এক নামাজের পর দ্বিতীয় নামাজের অপেক্ষায় থাকে তাইলে সাক্ষী দিয়ে দাও যে ইনি সত্যবাদী মুমিন, ইনি অরিজিনাল মুমিন, খাঁটি মুমিন. বেশক সুবহানাল্লাহ. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے افسوس کے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث کی طرف جائیں گے، تشریحات کی طرف جائیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا. مختصر میں ہم کو بات ختم کر دینی ہے. مگر اس دور میں جہاد کرنا بہت اہم عبادت ہو گئی ہے. اور پھر جہاد کا مطلب ہم کیا سمجھتے جانتے ہیں؟ جہاد کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کیا بندوق لیا، چلا دیا، کافروں پر وار کر دیا، تلوار سے گردن اڑا دی. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد کا اصل مفہوم کیا ہے؟ جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ تمام طرح کے
फसाद को खत्म कर देना और अमन और अमान को कायम कर देना, ये अफजल जिहाद। मगर इस दौर में सबसे बड़ा जिहाद आलिमों के लिए क्या है जानते हैं? हक बोलना। बोलिए, क्या बोलिए? इससे बड़ा जिहाद आलिमों के लिए दौरे हाजिर में कुछ नहीं, क्योंकि जबान है, ये हमारी जबान है, जबान है, बेलगाम हो गई है, बहुत सारों की जबान है। जो मन में आया, जो लफ्ज में आया, जो भी जबान में आया बक गए। कुरान में है कि नहीं कोई मतलब नहीं, हदीस में है कि नहीं कोई मतलब नहीं, शरीयत में है कि नहीं कोई मतलब नहीं है, बस आया, बस ठोक दिया, बोल दिया। सच क्या है? अब बोलिए, जब हम सच बोलेंगे, उलमाए किराम हक बोलते हैं, खास करके उलमाए रब्बानीन हक बोलते हैं, उनके तबस्सुस से जो उलमाए सुन्नत है वो हक बोलने की कोशिशें करते हैं। मगर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमने बारहा तजर्बा किया है, हमने बारहा देखा है कि हक बोलने की वजह से सजाएं मिला करती हैं, हक बोलने की वजह से कांटों पे चलना पड़ता है, हक बोलने की वजह से नफरतें मोल लेनी पड़ती हैं, हक बोलने की वजह से आपको अंगारों पे चलना पड़ता है। इसलिए हक बोलना बहुत बड़ा जिहाद है। इसलिए कुरान ने कहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा, हक बोलो, हक बोलो। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू तालिब आते हैं और आके कहते हैं भतीजा मैंने माना दीनों का हक़ुन, आपका दीन बर हक है, हमें तस्लीम है कि आप सही रास्ते पर हैं, हम मानते हैं कि आप सही दावत दे रहे हैं, हमें पता है कि आप झूठ नहीं बोलते, हमें यकीन है कि आप जो पैगाम देते हैं उसमें कोई शक नहीं है। मगर भतीजा आपके इस दिन हक के इशाअत की वजह से मुझ पर बहुत जुल्म सितम है, परेशानियों का सामना है, आप कुछ दिन के लिए बंद कर दें, কিছু টাইমের জন্য শুধু আপনি বন্ধ করুন, আবার পুনরায় আপনি আরম্ভ করে দিবেন। भतीजा भाई को, ए मेरे भतीजे, ओ मेरे भाई के बेटे, थोड़े दिन के लिए आप रुक जाएं, थोड़े दिन के लिए। तो मेरे नबी ने क्या कहा था? मेरे नबी ने कहा था, क्या कहा था चचा जान? एक हाथ में अगर चांद ला दिया जाए, दूसरे हाथ में सूरज ला दिया जाए, बल्कि अला खिलाफ रिवायतैन यूं कहा जाए कि मेरे हाथ में अगर जमीन की सल्तनत दे दी जाए, मेरे दूसरे हाथ में कायनात की सल्तनत दे दी जाए, मगर ये मुझसे ना होगा कि मैं हक ना बोलूं, चाहे इसके लिए मेरी गर्दन उड़ा दी जाए, मगर ये तो हक बोल के ही रहेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी मस्जिद बनी है, मस्जिद बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहेगा कि मस्जिद बनाना अच्छी बात नहीं? अभी एक हमसे पहले मुफ्ती साहब बता रहे थे, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई उसने जन्नत में अपना घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में मकान तैयार करेगा। बिल्कुल हदीस सही है, मुख्तलिफ अहादीस की किताबें मौजूद है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान हदीस का मफहूम क्या है? मम बना लिल्लाहि मस्जिद, मस्जिद बनाना। क्या बोलिए? एक है मस्जिद बनाना, एक है मस्जिद सजाना, दोनों में फर्क है। मस्जिद बनाना और मस्जिद सजाना, मस्जिद तो बन जाती है मगर लोग उस पे नहीं रुकते, बल्कि मस्जिद को सजाते सजाते वो सज जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, मगर मस्जिद के अंदर तशरीफ। ठीक है, हदीस में मस्जिद बनाने का जिक्र है, मस्जिद सजाने का जिक्र है ही नहीं, बल्कि मस्जिद सजाने की तो मुमानत आई है। हाँ, चूंकि दौरे हाजिर के तकाज़े कुछ और हैं, जिसकी बुनियाद पर फुक़हाए मुतअख़्खिरीन ने उसकी इजाजत दे रखी है। मैं बहुत ही गाढ़ी बात बताने जा रहा हूँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। ओ मस्जिद रज़ाए अक़सा के बानियों, मस्जिद रज़ाए अक़सा बनाने वालों, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपकी खिदमत कबूल करे, बोलिए आमीन। मगर सुनिए, यहाँ पे क्या, अगर दिल्ली के राजधानी के अंदर किसी मस्जिद को बनाने के बाद अगर मस्जिद मक्का नाम रख देंगे तो उस मक्का का वो मुकाबिल नहीं हो सकता है। किसी मस्जिद का नाम मस्जिद मदीना रख देने से उसका तकाबुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अहम्मुल मसाजिद है, जहां जाने की इजाजत है, जहां जाने से क्वालिटी मिलती है, वो सिर्फ 3 मस्जिद, वो सिर्फ 3 मस्जिद है। वो मस्जिद क्या है? मक्के की मस्जिद है, मस्जिद नबवी है और मस्जिद अक़सा है। उसके सिवा इन 3 मस्जिदों के साथ किसी मस्जिद का कंपेयर नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे कोई अपना नाम मोहम्मद रख देने से वो मोहम्मद नहीं हो जाएगा,
जाएगा। कोई अगर अपना नाम रसूल रख दे, नाउज़ुबिल्लाह, ये नाम रखना हराम है, वो रसूल नहीं हो जाएगा। ऐसे ही किसी मस्जिद का नाम मदीना मस्जिद रख देने से उस मदीने की मस्जिद के साथ उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये मस्जिद है, उसमें पढ़ना सवाब है, आना सवाब है, मगर इस मस्जिद का उस मस्जिद से कोई तकाबुल नहीं, कोई मुवाज़ना नहीं है, कोई कंपेयर नहीं है। ला मुखालता, ला मुकाबलता, वला मुवाज़नता बैनहुमा, दोनों के दरमियान कोई मुवाज़ना नहीं है। आखिरी एक हदीस पेश करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह, ये बात यकीनन अवामे अहले सुन्नत को छुएगी। क्यों? इसलिए कि मैंने बोला कि हक बोलना आज बहुत बड़ा जिहाद है ना, हक बोलना बहुत बड़ा जिहाद है। अगर मेरी मस्जिद के कमेटी के लोग हों तो मैं पहले ही आपसे माफी लेता हूं, अगर आपको भी तकलीफ हो तो माफ कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सुनिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलने जा रहा हूं। अल्लामा शामी ने इस हदीस को नकल किया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से गुजर रहे हैं, आपने मक्के को देखा, मक्के को देखा, अल्लाहु अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा, जहां आप एक पढ़ोगे 1 लाख का सवाब दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, आपने मक्कतुल मुकर्रमा को देख करके फरमाया, ऐ मक्का ए मुकर्रमा, यकीनन खुदा की बारगाह में तेरा मकाम है, तेरी अजमत है, तेरा मकाम है, तेरा रुतबा है, मगर ऐ मक्का सुन, ऐ मस्जिद मक्का सुन, ऐ खाना काबा सुन, तुझसे बहुत ज्यादा मकाम और मर्तबा एक पक्का मोमिन का होता है। बोलिए, आलिमों से, इमामों से बोलिए, जब एक पक्का मोमिन का मकाम और मर्तबा खाना काबा से भी बढ़कर है, खाना काबा जहां एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर है, और नबी फरमा रहे हैं कि इस खाना काबा को, कि ऐ खाना काबा तेरा मकाम है, तेरी इज्जत है, तेरी अजमत है, सब ठीक है, मगर खुदा की बारगाह में तेरी इज्जत से ज्यादा, तेरे मकाम और मर्तबे से ज्यादा एक पक्का सच्चा मोमिन का मकाम होता है। और फिर जो उलमा होते हैं, जो अइम्मा होते हैं, इनका मकाम तो आम मोमिनों से बहुत ऊंचा होता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मस्जिद का मकाम ज्यादा हुआ कि इमाम का मकाम ज्यादा हुआ। नतीजा ये निकला कि मस्जिदों से ज्यादा मकाम और मर्तबा इमाम का है, मगर आज इमामों को, आलिमों को, मुफ्तियों को पांव की जूतियों के बराबर भी नहीं समझा जाता है, तो तुम्हारा दीन कहां जाएगा? मस्जिद बना लेना यकीनन ये एक इबादत का काम है, मगर ये पक्का दीन नहीं है। अरे दीन तो वो है, ये तो नूरानी चेहरे हैं, इनके जरिए दीन फैलता है। आप एक मस्जिद बना लोगे, एक मस्जिद बना लोगे तो चलो 1000 नमाजी बन जाएंगे, 1 लाख नमाजी बन जाएंगे, मगर एक आलिम जब आलिम बनता है तो वो पूरी दुनिया में ईमान का नूर फैलाता हुआ। मेरे दोस्त, इसलिए आप मस्जिद से ज्यादा अइम्मा का इंतखाब करो और अइम्मा किराम को मकाम मर्तबा दो। मस्जिदों से ज्यादा मस्जिद को झाड़ू पोछा लगाओ, इज्जत दो, सवाब सब करो, मगर मस्जिद से ज्यादा अहमियत एक इमाम को दो, ताकि तुम्हारा इमाम जितना खुश रहेगा दीन का काम उतना अच्छा हो। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, मसला के आला हजरत मस्जिद रज़ा अक़सा नारे हैदर। मैं गुस्ताखी माफी चाह रहा हूँ, बात निकल ना जाए। इमाम बुखारी वो आलिम थे, हाफिज साहब, इमाम बुखारी, हजरत तवज्जो देना, इमाम बुखारी क्या थे? वो भी एक आलिम थे, मुहद्दिस थे, मगर इमाम बुखारी के बाद बोलिए कितने लाख इमाम बने होंगे, कितने लाख उलमा को उन्होंने पैदा किया, कितने लाख उलमा को उन्होंने जन्म दिया। अल्लाहु अकबर, वो सवाब कभी कम ना होगा। इमाम बुखारी आलिम थे, आपने क्या समझा आलिम को? आलिम का मकाम और मर्तबा तो वो है कि वो एक मर्तबा जन्म लेता है तो वो क़यामत तक अपना दरख्त लगा के चला जाता है। इसलिए आप आलिमों को अपना इमाम समझो, ऐसा नहीं कि जब नमाज पढ़ने गए इक्तदा तो बेहदर इमाम, ए इमाम साहब अपने आगे और आमिर पीछे, और जैसे ही नमाज से फारिग हुए इमाम अब आप पीछे चलिए हम आगे चलिए।
अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम को समझ अता फरमाए, सूझ अता फरमाए। बोलने के लिए बहुत था, वक्त बहुत कम है। अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मैंने जो कुछ बोला যা কিছু বললাম আল্লাহ পাক পরবর্তীকারে আলমের পবিত্র দরবারে আমি দোয়া করব, আপনারাও দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক সমস্তকে গ্রহণ করে নেয়। আর যা কিছু বলার মাধ্যমে হলো ভুল হলো আল্লাহ পাকের পবিত্র দরবারে আমি ক্ষমা প্রার্থী। আস্তাগফিরুল্লাহ সুম্মা আস্তাগফিরুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুবহানাল্লাহ।